everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas and we've got a special guest today, somebody who specializes into aesthetic dermatology. So, hello. Hi Darshanji, how are you? All good, sir, all good. So, glad to see you. And before I introduce you to our viewers, I just wanted to take a second pause and then probably see if you are settled. We get started. I'm good, yes. Great. Okay, fine. So for our viewers, because मैं generally introduce करता हूँ अपने guest को before the guest is online, but today I'm going to make it something different because I got something special today. और आपका जिस तरह से bio है मेरे पास, so I thought I'll have to read through it because उस तरह से मैं आपको थोड़ा justify कर पाऊंगा. Okay, great. So for all our viewers, our today's guest is a gold medalist. He's having 15 years of experience into aesthetic dermatology and he's a third generation dermatologist. यानी आप कह सकते हैं कि इनके खून में बहता है. So I would say इसके बारे में ज्यादा हमारे guest आपको बताएंगे. He's a vice president of the Delhi chapter. He's the national coordinator of their dermatology association. He's got around 60 plus publications to his credit, and he's co-founded along with his wife a project called Facecraft Project. Basically उनका एक startup है, and he also runs an academy. और ये सब करने के साथ वो अपना clinic चलाते हैं, अपनी practice करते हैं. He's a senior consultant to a couple of hospitals across Delhi. So please help me welcome our today's guest, aesthetic surgeon Dr. Rajat Kandari. Please, sir, आपका स्वागत है. Thank you very much for your kind words. सर आपका इतना बड़ा बायो है, हम लोग कई बार क्या होता है कि इतना आपकी मेडिसिन के बारे में हम जानते नहीं है और हमें एक्चुअली इसको रिफर करना पड़ता है. तो थोड़ा ब्रीफ में आप बता दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद आपकी स्टोरी बताइए सर. मेरे ख्याल में आपने काफी कुछ तो बता ही दिया. जैसा कि आपने कहा, आई एम अ थर्ड जनरेशन डर्मेटोलॉजिस्ट. आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन बोर्न इन अ फैमिली वेयर माय ग्रैंडफादर ही स्टार्टेड दैट फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एट एम्स, टीचिंग डिपार्टमेंट, एंड सब्सिक्वेंटली father was a dermatologist, is a dermatologist, Okay. a well-reputed name. And after that, I came in and I have been into practice now for almost 15 years. And other than that, yes, I run an academy called Vea Academy where I teach other dermatologists. And of course, the Facecraft project is a project close to my heart, which I founded with my wife, which is a skincare cosmeceutical brand. Okay, great. So थोड़ा हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर व्यूअर्स, उनको थोड़ा पता चलेगा. वी गो टू योर कोर सब्जेक्ट, उस पर हम लोग आपकी जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे. फिर आपका जो एकेडमी है सर, उसका हेतु क्या है? अकेडमी का प्रोसेस और विजन ये थी कि क्योंकि हमारे डर्मेटोलॉजी जब हमें पढ़ाई जाती है उसमें एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती है एमडी में आज तक. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. ओके. So in my generation, when we started practicing aesthetic dermatology, we were at the cusp when the change was happening from general dermatology. एक टाइम था करीबन 15-20 साल पहले कि आप अगर स्किन डॉक्टर को दिखाएंगे तो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आपको स्किन की प्रॉब्लम है. ओके. आज की डेट में कम से कम 60 to 80% ऑफ द ओपीडी इज क्योंकि सुंदर दिखना है, better दिखना है. So aesthetic dermatology came in and lots changed, and hence I feel it's important that those who want to learn should learn it, and that's where the academy came in. I thought it's pertinent that I can give back to the community which has given me so much. ग्रेट. सर सिंस आपने इसे कहा है तो हम आपकी कहने के बाद लिबर्टी लेते हैं कि सुंदर दिखना सबका राइट है, सबका हक है और सबको लगना भी चाहिए. तो थैंकफुली अभी आपके जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो लोगों को सुंदर बनाने के लिए काफी सारा प्रयत्न करते हैं. तो वो तो सर हमने जान लिया कि आपकी जो एकेडमी है, आप और जो अपकमिंग डर्मेटोलॉजिस्ट उनको ट्रेन करते हैं, उनको आपकी एक्सपर्टीज प्रदान करते हैं. सर ये आपका ये जो फेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, ये आपका जो स्टार्टअप है, उसके बारे में कुछ बताइए. फेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि ये आइडिया तो 2020 में आया था बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था उस टाइम पर. ओके. बट स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में एक प्रीमियम गुड क्वालिटी ब्रांड्स की डर्थ थी इन द स्किन केयर सेगमेंट. यानी कमी थी. Some brands which came in which have been doing really well, but there was a sort of area missing, and whenever I used to write certain things, मेरे को कई बार बाहर के ब्रांड लिखने पड़ते थे, आज भी लिखने पड़ते हैं, और क्वालिटी में डिफरेंस दिखता था. तो इसलिए ये थॉट थी कि इंडिया, मेड इन इंडिया, एक अच्छे ब्रांड को क्यों ना बनाया जाए, एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस ऑफ फेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट बिगैन. सर आपने नाम जो चुनाव किया है, आपने द नेम यू पिक्ड अप, फेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट, seems to be pretty interesting. Any logic behind it? The Facecraft project was actually something which I had thought of long time back, which I will do in the clinic, but that didn't sort of materialize to its full caliber. Hence, we thought of many other names because we thought the Facecraft project might be a little restrictive to the face. But as God would have it, और सारे नाम already registered थे, नहीं मिले तो फिर finally Facecraft project ही नाम पड़ा. करेक्ट. मैं आपसे ज्यादा इसलिए रिलेट हो पा रहा हूँ बिकॉज हमारी जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसका नाम भी ड्रीम क्राफ्ट है.
तो आई थॉट दैट रिजोनेट्स स्ट्रेट अवे एंड क्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक दैट्स वेयर द नेम कम्स फ्रॉम। मतलब बहुत सारे सवाल आए हैं, आई थिंक मेरे पास करीब 150 सवाल आए हैं, बट मैंने उसमें से टॉप 20-25 लिए हैं। जैसे ही बात होती है कि भी डॉक्टर रजत आने वाले हैं, और आई थिंक सर बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट। टू इज जैसे डर्मेटोलॉजी की बात आती है और एस्थेटिक्स की बात आती है, और सिंपल भाषा में लोगों को सुंदर दिखना है अभी, तो वो प्रस्तावित हो चुका है कि पीपल रियली वांट टू बी लुकिंग कूल, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट, इज पब्लिकली एक्नॉलेज्ड। तो बहुत सारे सवाल आए हैं, सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम सर, आई वुड लाइक टू गेट स्टार्टेड। आई होप सो यू आर रेडी। Yeah. ग्रेट सर, ये बिकॉज मैंने कुछ आपके वीडियोस भी देखे हैं और कुछ हमने होमवर्क किया था हमारी टीम ने भी। सर ये हमने कुछ सुना कि ये स्किन साइकिलिंग सेलिब्रिटीज के सर्कल में ये बहुत फेमस है। सो व्हाट इज दिस स्किन साइकिलिंग? Skin cycling is just a way of मेकिंग थिंग्स टॉलरेबल फॉर योर स्किन। मतलब आपने 3 या 4 एक्टिव चूज किए जो लगाने हैं। लेट्स से आपको रेटिनॉल लगाना है, एक ग्लाइकोलिक एसिड लगाना है, और एक विटामिन सी लगाना है, और एक नियासिनामाइड लगाना है। तो आप एक दिन मंडे के दिन रात को रेटिनॉल लगाएंगे मॉइस्चराइजर के साथ, सुबह अपना विटामिन सी और सनस्क्रीन लगाएंगे। अगले दिन आप ग्लाइकोलिक एसिड रात को लगाएंगे मॉइस्चराइजर के साथ, और सुबह आप लगाएंगे नियासिनामाइड सनस्क्रीन के साथ। अगले 2 दिन आप अपने स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करेंगे एक बैरियर रिस्टोरेटिंग मॉइस्चराइजर के साथ, और फिर रेस्ट देंगे। सो द आइडिया है कि स्किन का बैरियर स्ट्रिप ना हो, आपको एक्टिव का कुछ फायदा मिले, एंड टॉलरेबल बन जाए पूरा रूटीन। धीरे धीरे एज योर स्किन टॉलरेट्स आप इसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं या अग्रेसिव कर सकते हैं। ओके, तो स्किन का बैरियर प्रिजर्व्ड रहे और साथ साथ कुछ फायदा मिलता जाए। Okay, so this is basically, as we say in the term itself, you are making your skin to be used to this process? Used to the process, yes. And आपने जैसे फिटनेस सर्कल्स में कार्ब साइकिलिंग सुना होगा कि एक दिन, आज के दिन मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाऊंगा और अगले कई दिन कार्ब्स को अवॉइड करूंगा ताकि वजन कम हो जाए। सेम स्किन साइकिलिंग में आप एक दिन या 2 दिन कुछ अग्रेसिव लगाएंगे और सारे दिन अपने स्किन को थोड़ा प्यार देंगे ताकि वो रीजनरेट करे, और फिर देंगे। सेम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस। करेक्ट। दिस इज एप्लीकेबल टू एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप या हर कोई कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है ऑनेस्टली, बट अनलेस अगर कोई ऑलरेडी काफी एक्टिव्स यूज कर चुका है और उसका स्किन बहुत ही टॉलरेट कर लेता है, तो उसके लिए शायद ये थोड़ा माइल्ड हो। तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट रूटीन चूज किया जा सकता है, बट फॉर अ बिगिनर इट्स ग्रेट। Okay, great. Now, since this is Instagram friendly and typically Instagram is 18 to 35, lot of people in their 20s have asked this कि सर ये हमारा डार्क सर्कल से लेके बहुत सारे इश्यूज आए हैं, but they are asking me one thing which is very common, aging. ये बता रहे कि सर because of our stress and screens and filters and what not, aging is picking up in early 20s. Why is that so? ये सर इसका बेसिक रीजन क्या है? कोलेजन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है एक तो इस एज पे, जो आपने कही, after 30. But yes, there are of course other stressors in life now which weren't there maybe 20 years ago. Also, I think the exposure to what aging is and picking up the signs very early is much more, because there is so much exposure now. Every time you open Instagram, you will see कि aging हो रही है, इस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है, so on and so forth. तो लोग अभी जल्दी साइंस भी पिक अप करते हैं, more educated and aware हैं, and plus yes, of course our lifestyles have made it a bit like that कि we might be aging a bit more prematurely. आज की डेट में सफेद बाल 11 साल के बच्चे में भी दिखते हैं, जो एक टाइम पे हमें आफ्टर 35-40 दिखते थे। True, sir. True. Right, so these things are there. You'll see dark circles in a younger age group also as compared to an older age group. So yes, aging signs appear a bit more early. Okay, great. So before we get into another question, sir, as a trained aesthetic dermatologist and as per the science of your dermatology, sir, aging का standard process क्या होता है for Indians, for our normal people, and where do you start playing into the skincare and everything? And what is the difference today? Because बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ रहा है Instagram पे, so I think we wanted to understand the first fundamentals of. ज्यादातर एजिंग हम लोग कहते हैं कि आई एरिया और माउथ, लोअर फेस में, इन 2 एरियाज में ज्यादा दिखना शुरू होती है। ओके, बट एजिंग सिर्फ स्किन में नहीं हो रही। स्किन में तो हमारे को पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, अदर स्ट्रेसर्स, एनवायरमेंटल, सनलाइट से अफेक्ट हो रहा है, जिससे हमारा कोलेजन बिगड़ता जाता है, टूटता जाता है। बट मोर सो एजिंग स्टार्ट्स एट द फाउंडेशन। मतलब जैसे आपकी बोन्स ऑफ द बॉडी गो अंडरगो रिजॉर्प्शन, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, आपके स्कल में भी ये चेंजेस होती हैं। ये ज्यादातर अराउंड द आई, अराउंड द नोज, अराउंड द
जॉ लाइन शुरू हो जाती है। तो आप इमेजिन करो अगर कोई चीज किसी चीज को पकड़ रही है ऊपर टिश्यू को, यही नीचे से डाउन हो गई तो ऊपर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। तो वी टिपिकली से जब ट्रीटमेंट हो इसको फाउंडेशन से बिगिन करना चाहिए, बट यस ऑफ कोर्स सब वो नहीं करते। आप अपने स्किन को जरूर इंप्रूव कर सकते हैं और उसके लिए मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इज अ गुड लाइफस्टाइल, डाइट एंड स्लीप, recovery, and of course you can start your actives a little early when the aging process begins or you start seeing changes. Of course जो 25 पे यूज करेगा वो शायद 55 पे वही चीज ना यूज करे, बट अगर आप पिकअप कर रहे हैं साइंस तो श्योर यू कैन कंसिडर स्टार्टिंग समथिंग a little early. But at the same time I don't want the message to go कि बच्चों को भी आप स्किन केयर लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि even a 8-year-old is looking for skin care and ordering it on Nykaa. This is not great. So yes, but if you're about around 25-30, you can consider starting simple things. Okay. So what is recommended? क्योंकि I mean recommended is basically कि भी यहाँ से आप सोचना शुरू कर सकते हैं. Assuming we were thinking that it is post 40 या early 40s. Early 40s पे ज्यादातर आप पहुंच जाते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के बाद आज की डेट में. Correct. But before 40 now, a lot of people, the younger generation has started coming क्योंकि उनको बहुत चिंता है कि वो कैसे दिखते हैं. Correct. They care about how they look and they want to look good. Correct. So they come in, and of course if it's a young patient, depending on what they have, but simple things which can be started, of course a good cleanser, moisturizer, sunscreen, 3 things, and amongst the actives, easier things such as niacinamide, a vitamin C or a hyaluronic acid, these things may begin. Okay, great. Would you clarify it? Because I think हमने हमारे शो पे ये कहा है कि सुंदर दिखना अलाउड है, तो आई थिंक उसी पे बात हो रही है सर हमारी. ग्रेट. सर ये डार्क सर्कल्स के बारे में हमें बहुत सारे महिलाओं ने लिखा है कि डार्क सर्कल्स is happening not only to somebody to their 30s and 40s, but they are referring to more about their daughters. They think somebody to teens is facing a lot into dark circles. Why is it happening, sir? डार्क सर्कल्स बहुत टाइप्स के होते हैं. आपको डार्क सर्कल पैदाइशी भी हो सकता है कि अगर आपका वहां पे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है. ओके. तो मैं बार अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप 300 रुपए की क्रीम खरीदो या 3000 की, अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है डार्क सर्कल में तो वो कहीं नहीं जाना, वो ठीक नहीं होने वाला. क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो अगर कोई गड्ढा है उसको क्रीम तो नहीं भरेगी, उसको कोई प्रोसीजर से ही इंप्रूव किया जा सकता है. यस, इफ इट जस्ट सिंपल डार्क सर्कल विदाउट अ डिप्रेशन देयर, देन यस वन कैन ट्राई एंड इम्प्रूव इट बाय वेरियस क्रीम्स मोडालिटीज. अगर फाइन लाइंस है उनको इम्प्रूव किया जा सकता है. सिंपल क्रीम स्टार्ट करी जा सकती है बट कुछ काम करती हैं. बट मोर देन दैट, चेक योर हीमोग्लोबिन. ओके. Decrease your screen time and good sleep. All these help. Also, alcohol smoking can decrease if that has to improve. Okay. But typically, I think, sir, if you look at students जो पढ़ाई कर रहे हैं, या ऐसा देखा गया कि अगर आप लेट नाइट्स कर रहे हैं because if you are in stress, मंथ एंड आ रहा है, परफॉर्मेंस है प्रोफेशनल्स के लिए, तो वहां पे अपने आप आई थिंक एक साइकिल होता है. मे बी फर्स्ट 15-20 days दे आर लुकिंग ओके, बट इन द लास्ट 10 days ऑफ द मंथ दे आर लुकिंग लिटिल डल, हाउएवर व्हाट दे डू. ये क्या साइंस है सर? हाँ, तो इसी को मतलब रिकवरी बेटर करें, थोड़ी अपने काम पे काम करें, बट एटलीस्ट ट्राई एंड गेट सम गुड स्लीप. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड गुड न्यूट्रिशन एंड मे बी स्क्रोल लेस ऑन इंस्टाग्राम. ओके. अच्छा सर, yesterday my daughter was making fun of me. मैं कुछ questions देख रहा था and she was looking at this. सर तेल चंपी की बात आ रही थी and then probably typically everybody does it. We all Indians have been trained कि तेल चंपी is very good for your hairs. And then when you see your receding hairline, तो सर does this तेल चंपी really help? Applying, हंसी, हमारा बाल ऑयल ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है. ओके. तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा ज्यादातर तेल नहीं लगाते बालों पे. ज्यादातर हम लोग ज्यादा लगाते हैं. इसके फायदे हैं कुछ, बट ये बाल उगाएगा नहीं. इसके फायदे ये हैं that when you do the champi, there is an improved circulation around your hair follicle because of the method of the massage. ओके. एंड ऑल्सो तेल क्या करता है, तेल इज लाइक अ कंडीशनर. तो आपके हेयर शाफ्ट को कोट कर देगा. जब वो कोट कर देगा उसको थोड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी और वो स्मूदर होएगा. बट जहां तक बात रही कि क्या ये बाल को मोटा बना देगा या आपकी हेयर लाइन रिस्टोर कर देगा, नहीं सर. बहुत ज्यादा क्लेम्स अभी हम लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे. अगर हम देखेंगे सर, पिछले 6 महीने में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आई है, सम फेमस ब्रांड्स एंड सम आदिवासी ब्रांड्स, जहां पे बहुत बड़े टॉल क्लेम्स किए गए हैं. तो मेरे जैसे लोग तो वहां पे भागेंगे. हाँ, आपके जैसे बहुत लोग भागे. बट in the long term, as per scientific evidence, hair nutrition can improve, but क्या वो पतले बाल को मोटा करेगा या ये हेयर लाइन को रिस्टोर कर देगा, वो नहीं, मुश्किल है वो. ओके.
So typically it is just helping you in terms of maybe volume, ऐसा कुछ? Volume and maybe a little more luster and nutrition. The hair strength will improve. अच्छा, करेक्ट. क्योंकि जब आप चंपी करेंगे तो वो जो सर्कुलेशन इंप्रूव होगी वो बाल को ऑक्सीजन भी ज्यादा पहुंचा सकते हैं और न्यूट्रिशन भी. करेक्ट. बट देयर इज नो, क्या वो इस लेवल तक पहुंचाएगा कि वो बाल का साइकिल ही चेंज कर दे? साइकिल से मेरा मतलब है कि क्या वो पतले बाल को मोटा कर दे? ये थोड़ा टफ है. ओके, ग्रेट, फाइन. Yeah, because I think I had a follow-up question about this oil, but I think you have answered that. There is a lot of myth going on around natural remedies because हम Indians जुगाड़ करते हैं. We try and play around with whatever is available at our house. For example, haldi and aloe vera and a lot of other stuff. So does that really help? Applying haldi on your face or maybe aloe vera? Because जिस तरह से उसके गुणगान गाए गए हैं, तो क्या वो सही मायने में सर? हल्दी इज एन एंटीऑक्सीडेंट. अगर आपने हल्दी यूज करना ही है तो उसको लगाने से अच्छा इंजेस्ट कर लीजिए. ओके. क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी में मदद करेगा. एंड एज फॉर एलोवेरा, एलोवेरा में कोई हार्म नहीं है, बट बहुत लोग प्लांट से निकाल के लगाते हैं एलोवेरा नेचुरल. करेक्ट. इस केस में अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, ड्राई है, इन केसेस में एलोवेरा कैन बी अ पोटेंट सेंसिटाइजर. मतलब वो स्किन को परेशान भी कर सकता है. ओके. So in those cases, maybe, it's better that you don't do that and use a very bland moisturizer instead rather than putting the aloe vera. But yes, I mean, I can't say it's a complete no, but I can't say it will do miracles. Okay. So you should not expect कि भी इसमें मेजर बदलाव आने वाला है. हाँ, अगर किसी का बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, yes, एलोवेरा थोड़ा मॉइस्चराइज जरूर कर देगा, no doubt. Okay. But there is no dramatic change. एलोवेरा का काम है मॉइस्चराइजेशन एंड सूदिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन. बट अगर किसी का बहुत ही लाल चेहरा है, उसके ऊपर एलोवेरा लगाया जा रहा है, वो शायद वर्क ना करे उनके लिए. ओके, ग्रेट. सर, वी कम टू दिस सेक्शन ऑफ, जैसे आपने बताया कि सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वेयर इट विल हार्म योर स्किन, बट अर्ली सन इन द मॉर्निंग विच इज अज्यूम्ड कि भी सुबह 8 बजे के आसपास, इफ यू गेट अराउंड 10-15 मिनट्स, विल दैट हेल्प फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी? सॉरी, आई डिडंट गेट दैट. वी टॉक अबाउट सनलाइट और वी वर रेफरिंग कि सनलाइट आपके स्किन को डैमेज करेगी, बट वी वर ऑल्सो बीन हियरिंग कि अगर आप सुबह 8 बजे के आसपास इफ यू आर टेकिंग सनलाइट फॉर अराउंड 15 मिनट्स, दैट शुड हेल्प. So, कोई harm नहीं. The right approach. There's no harm in doing that. But if you are out in the sun for very long, it's a good idea to use sunscreen. आजकल sunscreens के बारे में भी बहुत controversies चल रही हैं. Okay. But 15 मिनट सन अगर आप ले रहे हैं तो इसमें कोई harm नहीं है. Okay. So सूर्य को नमस्कार कर लें. Correct. Ideally, it should be done in the morning and do the Surya. That's fine. The UV index is the highest after it, between 11 and 1. Okay. So I would recommend maybe not at that time, but if it's early morning sun, there's no problem. Correct. तो आइडियली सर वो समय में आपने जो बताया 11 से 1 के बीच में उसको अवॉइड करना चाहिए. हाँ, उस टाइम पे don't unnecessarily go in the sun too much. Correct. Since we talk about this moisturizer and we talk about this sunscreen, so we also talk about SPF. सर, ये SPF का क्या महत्व है और हर एक स्किन टोन के लिए कुछ अलग SPF होता है? What is applicable to all different age groups या maybe all different skin type? उसके बारे में सर कुछ बताइए. SPF को हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं. Okay. SPF इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि बहुत बहुत सालों तक इट वाज द ओनली मेजर दैट अ सनस्क्रीन हैड ऑफ प्रोटेक्शन. Okay. मतलब अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको एक ही चीज पता है कि मैं SPF 70 की सनस्क्रीन लगा रहा हूं तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे प्रोटेक्शन दे रही है, या मैं SPF 30 की लगा रहा हूं, कम दे रही है. बट SPF इज इसेंशियली अ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVB रेडिएशन जिसे हम बोलते हैं. Okay. हमारे सन से हमको UVA भी आती है जो 90% है, UVB कम आती है अर्थ तक, और UVC तो बहुत ही कम आती है. ये एक टाइम था जब UVA को मेजर, सनस्क्रीन हमको UVA से कितनी प्रोटेक्शन देगी ये हमें पता ही नहीं होता था. ये हम कैसे मेजर करें ये हमने नहीं समझा. बट अब अगर आप सनस्क्रीन खरीदें, लुक एट योर SPF बट ऑल्सो लुक एट द सनस्क्रीन लेबल टेलिंग यू UVA प्रोटेक्शन. वो ज्यादातर आपको उस पर लिखा होगा PA+++ या उस पर UVA लिखा होगा एक गोले के साथ. इसका मतलब ये सनस्क्रीन आपको UVA से भी प्रोटेक्शन दे रही है. तो दोनों चीजें जरूरी हैं. ओके. एंड एज फॉर योर क्वेश्चन अबाउट इट बीइंग इज इट इक्वल फॉर एवरी स्किन, सनस्क्रीन को टेस्टिंग जब करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि एक 2 मिलीग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक जगह पर इतनी सनस्क्रीन लगाएं तो आपको इतना SPF प्राप्त होगा. बट ऑल ऑफ अस डोंट डू दैट in real life, because if we do that, our sunscreens will be over very fast. Oh. We have to put this much sunscreen just for the face and neck.
I wonder how many people do that. I try to, being a dermatologist, but I don't know how many people do that. So we need to actually change the definition of SPF, और इसको measure करने के तरीके ये ज्यादातर Caucasian skin मतलब whites पे ही measure हुई है। तो अब पर अभी रिसेंटली हमको पता चला है कि अब SPF मेजरमेंट आपको एक सनस्क्रीन में इन वीवो और इन विट्रो ह्यूमंस में और लैब टेस्टिंग दोनों करनी है अपनी सनस्क्रीन को एक SPF कहने के लिए या क्लेम करने के लिए। तो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग मे बी। ओके, किस किस को सनस्क्रीन लगानी चाहिए? एज ग्रुप को लगानी चाहिए? इज इट इम्पोर्टेंट कि भी हम लोग 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, सभी को लगानी चाहिए? और क्या सभी को अलग अलग लगानी चाहिए? 20 साल के 30 साल के यस लगानी चाहिए, बट यस अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो 6 मंथ्स से कम नो, फोटो प्रोटेक्शन इज बेटर। 6 मंथ्स to 2 years mineral sunscreen only. Above 2 years one can use anything else, but I would still prefer mineral sunscreen. आपने कहा सबको सेम लगानी चाहिए, नहीं सबको सेम नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी को एक सन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है तो वो एक अलग सनस्क्रीन यूज करेगा, ऐसी सनस्क्रीन यूज करे जो उसको विजिबल लाइट प्रोटेक्शन देती है, शायद थोड़ी बेटर SPF है। किसी का बहुत सेंसिटिव स्किन है तो शायद एक मिनरल सनस्क्रीन यूज करे, केमिकल फिल्टर्स ना यूज करे। इसका ये मतलब नहीं है कि केमिकल फिल्टर्स बेकार हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आई डोंट वांट दिस मैसेज आल्सो टू गो। बट सेंसिटिव स्किन, यस यू कैन यूज अ मिनरल सनस्क्रीन। अदर स्किन्स लाइक यू एंड मी, वी कैन यूज एनी नॉर्मल गुड केमिकल बेस्ड और मिक्स्ड केमिकल एंड फिजिकल सनस्क्रीन, दैट्स फाइन। ओके सर, ये मुझे एक और सवाल था। अगर ये क्लियर नहीं है तो मिनरल सनस्क्रीन वो होती है जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये आपको दिखेगा उस सनस्क्रीन में। और कई बार ये मिनरल सनस्क्रीन में टिंट होता है, उसको आयरन ऑक्साइड से आता है वो टिंट। ये सनस्क्रीन उनके लिए बेहतर हैं जिनको सन इंड्यूस प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत स्पोर्ट्स में है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम जब हम देखते थे पुराने, तो वो व्हाइट पूरी दिखती थी, वो जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम। और अब उन्हीं सनस्क्रीन को पार्टिकल साइज को छोटा कर दिया ताकि वही सनस्क्रीन हम, आप और मैं जैसे लोग लगा सकें विदाउट लुकिंग व्हाइट। Okay. However, if you want a real true sunscreen which is mineral and protects against visible light, it should be like that. But of course, we can't be walking around like that, so things have changed. Correct. You also mentioned about some count for SPF. तो वो difference कहाँ पे applicable होता है सर? Because maybe is it applicable something different for a city wise or the temperature wise or maybe स्किन टोन वाइज? SPF हमें ये बता रहा है बेसिकली कि अगर आपने SPF 50 की सनस्क्रीन लगाई है तो आप सन में एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक रह सकते हैं और आपको बर्न नहीं होगा। बट अगर आप क्या होगा सर? SPF 30 या 15 लगाई है तो आपको बर्न ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ओके, तो कितनी जल्दी आप बर्न हो जाएंगे वो बता रही है आपको सनस्क्रीन। ओके, तो अगर ऑन द बीच or if you're going to the mountains, maybe using a higher SPF makes more sense. As per guidelines, global guidelines and Indian guidelines, one of them has been published by us also, SPF 30 for Indian skin is good enough and SPF 50 is good. So if you want to use SPF 50 is good. Okay. And for daily routine? SPF 50 is good. 30 के ऊपर कुछ भी चलेगा, but 50 अच्छा है, sweet spot है. Great. Okay. If I travel, let's say daily 1 or 2 hours in my car, do I need to apply sunscreen? Yes. Okay. You should. I think since we talk about sunscreen, sir, same goes to the moisturizer. हम typically सोचते हैं. There's an interesting question by Dr. Buddhi Raja saying, what about oral sunscreens? Oh, yes. Yes, oral sunscreens are available. So if someone is going to the beach, let's say, or for a vacation, maybe you can use oral sunscreen. Oral sunscreens are basically in the form of something called it's a fern extract. It's called Polypodium leucotomus. इसको आप ले सकते हैं सुबह शाम या एक बार दिन में, वो आपको थोड़ी और प्रोटेक्शन दे देगा। इसके पीछे कितना एविडेंस है, दिस इज नॉट कंप्लीट, इट्स गॉट लिमिटेड डेटा राइट नाउ, बट इट्स अवेलेबल। एक और चीज आती है जिसको हम रेड ऑरेंज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये फ्रूट से पाई जाती है। वन कैन ऑल्सो कंसिडर यूजिंग दैट। सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर अ person maybe who is finding it difficult to just reapply the sunscreen. They can use an oral sunscreen for whatever it's worth. I can't say it's got amazing claims as of right now, but scientific papers seem encouraging. Okay. So since we're talking about sunscreen, same goes with our moisturizers. तो मेरे पास सवाल था कि typically since अभी winters है तो हम लोग winters के बारे में we talk about moisturizer, but the new trend or probably the new study says we need to apply moisturizer every single day. Sir, ideally क्या करना चाहिए? Ideally, yes, one should hydrate every day.
अनलेस आपका बहुत ही ऑयली स्किन है, देन मे बी यू कैन यूज अ मॉइस्चराइजर स्टिल, बट अ डिफरेंट मॉइस्चराइजर। मतलब अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है, शायद मैं आपको एक बहुत लाइट जेल बेस्ड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर दे दूं। बट अगर नॉर्मल स्किन है तो आप एक क्रीम या लोशन यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली फ्रेग्रेंस फ्री हो, नॉन कॉमिडोजेनिक। नॉन कॉमिडोजेनिक का मतलब नॉन पिंपल कॉजिंग, बहुत ऑयल्स ना हो उसमें। और ज्यादातर एक मॉइस्चराइजर में बैरियर रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज एक चीज से आती हैं जिसको हम कहते हैं द 1:1:1 रेशो। कोलेस्ट्रॉल, सेरामाइड, फ्री फैटी एसिड, ये तीन चीज इस रेशो में होनी चाहिए फॉर द मॉइस्चराइजर टू गिव यू अ गुड बेनिफिट। ये इसलिए इस रेशो में क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजिकल, जो हमारा स्किन का बैरियर है, उसको मिमिक करता है। ओके उसकी नकल करता है। तो अगर हम उसी तरह का मॉइस्चराइजर लगाएंगे, इट विल गिव अस मोर बेनिफिट। ओके एंड डू मैन एंड women need to use a different moisturizer? Yeah, I mean, see, men don't like too much sticky stuff on their face. Maybe many women also don't. But so maybe for a man, you can use a slightly thinner moisturizer or a light lotion. Some women like a very hydrating night cream ताकि उनको dryness वगैरह, dehydration कम हो जाए, तो उनको एक थोड़ा सा creamier, more velvety moisturizer दिया जा सकता है। ओके और ये सिर्फ बाहर जाने के वक्त करना चाहिए या अगर आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, एसी में बैठे हैं, तब भी नहीं, आपको तो करना चाहिए? आप सुबह नहाने के बाद एक मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पे तो लगा ही सकते हैं। चेहरे पर आप मॉइस्चराइजर लगाएं, या आजकल कई सनस्क्रीन्स में मॉइस्चराइजर के साथ या बैरियर रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज के साथ सनस्क्रीन होती है। इवन वी हैव वन विच इज इन द फेस क्राफ्ट प्रोजेक्ट। और सो यू जस्ट डू दैट इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट यू डू योर मॉइस्चराइजिंग रूटीन। एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैं मॉइस्चराइजिंग रूटीन कब करूं, अपने एक्टिव लगाने के पहले या बाद? तो की दो थॉट्स हैं, इसका कोई राइट आंसर नहीं है। अगर आपकी स्किन काफी ड्राई है तो मैं कहूंगा पहले मॉइस्चराइजर लगाओ, अपने बैरियर को रिस्टोर करो, ये आपके एक्टिव को बेटर पेनिट्रेशन देगा। बट अगर आपकी स्किन काफी नॉर्मल है तो आप पहले रेटिनॉल लगा के भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ओके फाइन एंड डू वी हैव अ डिफरेंट साइकिल फॉर द डे एंड फॉर द नाइट या ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज डे में हम वो चीजें नहीं लगाना चाहेंगे जो हमारे स्किन बैरियर को थोड़ा सा डिसरप्ट करे या एक्सफोलिएट करे। तो जैसे रेटिनॉल हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, एसिड जहां भी होंगे ज्यादातर हम नाइट में लगाना चाहेंगे। और रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, ये सब चीजें हम रात को लगाना चाहेंगे। Okay, you mentioned about acne. So acne again is a big challenge. We've seen acne basically हम ये समझते थे कि teenagers का problem है, early 20s का issue है. But time and again we have seen this in other age groups also, even in 30s. Why this happens? एक्ने एक डिसऑर्डर है जो आपके ऑयल ग्लैंड से संबंधित है। तो अगर किसी का ऑयल ग्लैंड थोड़ा ज्यादा ऑयल बना रहा है तो उसको एक्ने होने की ज्यादा चांसेस हैं। खासकर इसीलिए ये टीनेजर्स में ज्यादा शुरू होती है क्योंकि तब ऑयल ग्लैंड मैच्योर हो रहा होता है। Okay. So that's why they get more acne. But yes, you're right. Nowadays, adult acne is very, very, very common. I'm saying very, very, very. That's because styles are a hormonal undercurrent. So in teenagers, आपको acne T zone में दिखेगी ज्यादातर। Oh, okay. Adult में आपको acne यहाँ जॉ लाइन के आसपास ज्यादा दिखेगी, शायद थोड़ी ज्यादा पेनफुल हो, में ज्यादा होती है और थोड़ी स्टबन भी होती है। मतलब ट्रीटमेंट थोड़ी ज्यादा चाहिए हो, शायद डिफरेंट काइंड की चाहिए हो। Okay. वो ऐसी एक्ने हैं, उनको थोड़े हेयर हैं चिन पे, खासकर विमेन को, दे शुड रन अ हार्मोनल टेस्ट और सी देयर डॉक्टर पर्टिकुलर। Okay. इन टीनेजर्स एक्ने, कई पेरेंट्स बोलते हैं कोई बात नहीं, पिंपल्स ही हैं, इसको जाने दो। जो पेरेंट के लिए पिंपल है वो उस बच्चे के लिए या टीनेजर के लिए बहुत बड़ी बात है। So it has the ability to lead to severe psychological disturbances. So please treat it. That's my suggestion. And don't wait for any acne to scar, because even a small blackhead can lead to scarring. So treat the acne early rather than wait for too long and repent कि अब तो scar हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। तो मेरा फॉलोअप सवाल वही था सर कि ये जो पिंपल्स के बारे में बताया जाता है कि अगर ये एक पिंपल है वो फूट गया, उससे दूसरा होगा, तीसरा होगा, फिर उसका स्कार बन जाएगा, तो शुड वी एक्टिवली ट्रीट इट और लेट इट गो ऑन इट्स ओन? जैसे हमारी दादी माँ कहती थी 4 दिन उसको कुछ मत करो, अपने आप चला जाएगा। व्हाट इज द राइट अप्रोच? चला तो जाएगा, बट अगर वो स्कार छोड़ के जाएगा, नंबर 1 एक ऑप्शन वो है। इफ यू आर लकी शायद आपकी बॉडी उसकी इन्फ्लेमेशन को फाइट ऑफ कर दे। बट मोर देन एनीथिंग, अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा हो रहा है, दैट मीन्स डिजीज इज एक्टिव। ओके। तो उसे ट्रीट करिए। ओके। डोंट थिंक कि ये बहुत छोटा है, अभी तो सिर्फ 14 इयर्स का है, इसको क्या देंगे लगाने को।
लगा तो दे सकते हो ना यार, चाहे गोली दो ना दो, बट बिकॉज एवरीवन सो स्कैर्ड ऑफ थिंग्स नाउ डेज एंड सस्पिशियस अबाउट देम, so at least apply the thing and let the dermatologist take the responsibility for what you are doing and your treatment course, but Okay. treat the child. The advice is ki get it treated, get a Yes. expert opinion on that, see your Yes. dermatologist. Yes. Correct. And sir, what about people into their late 30s? आप कुछ women का बता रहे थे कि अगर कुछ specific है तो आपको डॉक्टर को देख लेना चाहिए. यस, What अगर about that? एक्ने हो रही है अडल्टहुड में, खासकर जॉ लाइन के आसपास, साइकिल्स के पहले एक्ने ज्यादा बढ़ रही है, हेयर थोड़े आ रहे हैं, साइकिल्स अब नॉर्मल हैं, तो आपको अपना थायराइड और पीसीओडी चेक कराना चाहिए. Okay. These are signs. अगर आप overweight हैं, all these are signs that you improve your diet and lifestyle, maybe do a hormonal testing, and if there is anything abnormal, see the appropriate doctor to address it. It is not difficult to treat it. It is just a matter of identifying the problem. Okay, fine. So here since we talk about all age groups, तो ये जो स्किन के रूटीन है सर, जो आपने बताया कि अगर कोई 20s में है या टीन एज है तो उसका कुछ अलग होगा, और 30s में कुछ अलग हो सकता है, 40s में कुछ अलग हो सकता है. So what is the right approach for all these three age groups? Sunscreen, moisturizer, cleanser is consistent. Mm-hmm. But अगर हम एक्टिव्स की बात करें तो अगर 20 to 30, 35 है कोई, Mm-hmm. तो मैं उनको सिर्फ लगाने वाली चीजें बोलूंगा कि आप एक विटामिन सी लगा लो या एक नियासिनामाइड लगा लो और अपना अदर रूटीन करो, दैट्स इनफ फॉर यू. मे अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो एजिलिक एसिड दे देंगे. 35 to maybe 45, 50 is where you can introduce a retinol. Start with a beginner friendly retinol of a low concentration and slowly turn it up. And you can also do the vitamin C's and maybe a peptide formulation or something else depending on what your skin requires. This is a time where one can consider कि क्या हमें कोई प्रोसीजर करना है स्किन के लिए. और 50-55 के बाद यस, थोड़ा प्रोसीजरल इंटरवेंशन अच्छा है क्योंकि आपका कोलेजन काफी गिर जाता है 40 के बाद. तो उस स्टेज पे आप कुछ प्रोसीजर्स के बारे में सोच सकते हैं जो आपका कोलेजन इंडक्शन करे. मतलब जिस तरह से आप एक कैल्शियम लेते हैं अपनी हड्डियों के लिए, अपने स्किन के लिए कुछ ऐसा करा जा सकता है जो कोलेजन इंड्यूस करे. इससे एक सवाल मैं आपको दे सकता हूं कि क्या मतलब कि हम कोलेजन सप्लीमेंट लें या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सवाल मुझे आता है. डू आई टेक कोलेजन, माई फ्रेंड इज टेकिंग इट. कोलेजन इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, सो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मिनिस्क्यूल पार्ट. इसको हम मरीन कोलेजन कहते हैं ज्यादातर. मरीन कोलेजन इज समवॉट इफेक्टिव, मतलब अब्सॉर्ब हो जाता है. क्या वो अमेजिंग काम करता है? यस. कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये स्किन हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी और फर्मनेस में बेटर कर देता है उसको. क्या सबको लेना चाहिए? आई डोंट हैव अ गुड आंसर टू दैट क्योंकि आई थिंक इट्स टू अर्ली. देयर इज नॉट इनफ डेटा. वट एवर डेटा इज देयर सीम्स up and down, controversial. So if you want to take it, but with a pinch of salt. It's like taking a protein supplement. Also, if you have a kidney issue, please be careful. Don't overtake it. Okay, so ये basically आप जो collagen की बात कर रहे हैं, are we thinking right कि it is referring to the skin tone, elasticity, firmness? Elasticity and firmness. ये आपके स्किन को फर्म रखता है. Okay, since आप जब early 20s, 30s में होते हैं, you have a better skin texture and overall feel and look. Over a period of time, people want to improvise. That's where the Botox comes into picture. पर ये भी देखा गया कि celebrities, Bollywood, Hollywood, people are talking about Botox. So, what is the right approach to Botox? ये Botox होता क्या है और किस तरह से इसे यूज किया जा सकता है? आप अपने आईब्रोज रेज करिए यूं. ये लाइनें जो हैं ये बोटॉक्स से ठीक होंगी. Okay. या सो बोटॉक्स इज फॉर डायनामिक लाइन्स. ये इन लाइनों को Okay. और भी बहुत चीजें कर सकता है, बट बेसिक चीज ये है. Okay. फिलर्स help in giving volume, structure, contour to the face. If someone wants enhanced lips, that's filler. Someone wants a cheek lift or a lift to the face, that is filler. Okay. So these are non-surgical means of improving the face. Okay. Right? आपका दूसरा सवाल था किसको करना चाहिए. शायद Correct. जिसको इंडिकेशन दिख रही है वो कर सकता है. मैं बोटॉक्स करता हूं अपने चेहरे पे, अभी सारा वेयर ऑफ हो चुका है इसलिए लाइनें दिख रही हैं. बट यू कैन डू इट वंस द लाइन्स प्रेजेंट देमसेल्व्स. इट्स जस्ट लाइक एक डायबिटिक जो इंसुलिन लेता है. बोटॉक्स इज एक्टिंग ऑन अ मसल टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द मसल, मेक इट hyper or relax. As for filler, it is a little more, so it's best We are good. Yeah. and get the advice. Okay. You also mentioned about fillers. We have a question. Somebody who's asking, like,
I am looking at lip enhancers or they're talking about lips like Angelina Jolie. What is that? Is it safe? It should be done? And what is a scientific advice? Yes, see, fillers have been in the market for decades. Okay. So if it's done by the right person, it's safe. I think there was a question a little earlier also that there are a lot of non-dermatologists doing procedures, non-plastic surgeons doing procedures nowadays. So yes, I would sincerely suggest that don't go to a person who does not have the right skill set to do it. At least knows what they are doing, and do your research. But because just like any procedure or surgery, mistakes can happen even in the best hands sometimes. But at least if that hand knows how to handle the mistake, it's better than someone who doesn't know how to handle the mistake at all. True. So go to the person who knows what they're doing and you should be all right. It should be done in a subtle manner. Obviously, no one wants to walk out with lips looking not matching your face or over the top. And honestly, everyone does not look good with Angelina Jolie's lip. I always say you need to enhance what is given to you by God to the best of its potential. अगर आपके ऊपर एंजेलिना जोली की लिप चिपका दूंगा तो वो सबको नहीं लगेगा. Correct. So obviously it varies from person to person. Correct. Great. I think it was a fun thing. But so typically, because of the trends, social media, especially the way Instagram is moving things, a lot of information, plus as you rightly said, misinformation, and especially a lot of people doing all the surgical interventions, या आप जैसे बता दें ये जो ऊपर ट्रीटमेंट सारी आपने बताई वो सारी बहुत not so trained people are doing it, and that is where the challenge is. So I would recommend for all our viewers, go to the right authentic people, make sure you go with the right trained people who are going to be taking care of you, because somewhere if you mishap then you are in the big trouble. तो डॉक्टर साहब ने सही बताया कि मेक श्योर यू गो टू द राइट एक्सपर्ट्स. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन एंड द ग्लो, देयर इज सम वर्ड्स अराउंड कोरियन स्किन. सर, इंडियन स्किन वर्सेस कोरियन स्किन, सर ये सब क्या चल रहा है? ये सब इंडियन स्किन है, उसमें खुश रहते हैं. कोरियन स्किन अलग है. नहीं सर, ये बहुत सवाल आए हैं. ग्लास लुकिंग स्किन, कोरियन, मुझे इमेजेस भेजी गई है. सर, ये कोरियन स्किन का फंडा क्या है सर, बताइए. फंडा ये है कि आप एक 7-8 स्टेप रूटीन फॉलो करें जिससे क्लेम है कि आपको एक ग्लास जैसी स्किन मिल जाएगी. वन मस्ट रियलाइज, ना हमारी नाक कोरियंस की तरह है, ना हमारे आंख कोरियन, बट हम बनना चाहते हैं उनकी स्किन की तरह. तो ऐसा शायद मुमकिन ना हो. हम वी आर अ ब्यूटिफुल रेस. आई थिंक वी शुड ourselves look like a gorgeous Indian skin rather than Korean glass skin. So, and I've said this numerous times earlier. So, I think follow a simple and consistent routine that goes a long way. See, when we want to improve our bodies, we need to exercise and have a good diet consistently, not for 2 weeks. Even in skin, everyone's in a big hurry. कि आज कुछ लगाना शुरू करा, बस एक हफ्ते में कुछ तो दिखना चाहिए. कई बार वो ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है. एनी कॉस्मेस्यूटिकल, खासकर ऑल दीज थिंग्स दैट वी अप्लाई और टॉक अबाउट, विटामिन सीज, रेटिनॉल्स, एटसेट्रा, दे ऑल वर्क in 3 to 4 weeks. So that is the start, honestly, and give it up till 12 weeks. So 3 months is a good period, 3 to 4 months to see what effect you are getting. Right? So wait for the effect to come, and if it's not working, you can improvise it and change it. But consistency चाहिए थोड़ी सी, उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी. And आप इंडियन गॉर्जियस स्किन की तरफ चले जाएंगे. सर, ऐसा कुछ कीजिए ना, बिकॉज आई थिंक रजत जी ऐसा है कि ये कोरियन ग्लास स्किन की बहुत चर्चा हो चुकी है. हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इंडियन ग्लास स्किन का कुछ हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज पीपल बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस. ये पिगमेंटेशन की बात आ रही है बहुत, बिकॉज पिगमेंटेशन क्यों होते हैं और बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ इट. पिगमेंटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है. अम्ब्रेला टर्म से मेरा मतलब कि किसी भी रंग को हम पिगमेंटेशन बोलते हैं. ओके. पिगमेंटेशन के कम से कम 1000 कॉजेज हैं, बट सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो एक तो जो यहाँ ज्यादातर हो जाता है, जिसको हम झाइयां बोलते हैं हिंदी में, ब्लेमिशेस या मिलाज्मा इज द साइंटिफिक नेम. कई बार प्रेगनेंसी के बाद भी ये हो जाता है, इसको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं. Okay. ये सबसे कॉमन है. और कई और चीजें जैसे अराउंड द माउथ, अंडर द आई, जिसकी हम बात कर चुके हैं, और कई डिजीजेस में भी, और कई हार्मोनल इश्यूज. अगर आपको डायबिटीज है तो कई बार चेहरे पर, नेक पर आपको पिगमेंटेशन आ सकती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पिगमेंटेशन का कारण आइडेंटिफाई करें. अगर उसका कारण है उसको एड्रेस करें. सेकेंडली, यूज योर सनस्क्रीन रेगुलरली.
it helps in making it get worse, preventing for it to get worse. And yes, there are medical applications as well as procedures which can help pigmentation. तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपके लिए क्या सही रहेगा. ओके. Yeah. सिंस वी टॉक अबाउट लॉट अबाउट सर, ये बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर देख रहे हैं कि मैं क्रीम लगा लूंगा, मैं मॉइस्चर लगा लूंगा, या मैं फिलर्स, ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीजें सही है, जरूरी है, पर वी हैव बीन ट्रेन टू लुक आउटसाइड फॉर एवरीथिंग. सर आपके जैसे एक्सपर्ट्स सही चीजें बता सकते हैं कि थोड़ा अंदर भी देखना पड़ेगा. और वी हैव बीन रिफर्ड बाय आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स के एक अच्छी सी नैप ले लो, एक अच्छी सी डीप स्लीप ले लो, मेडिटेशन कर लो, तो बहुत फर्क पड़ेगा. सर इसका क्या रोल है हमारी लाइफ? एक कहावत है, द स्किन इज द मिरर ऑफ द सोल. ओके. तो जैसा आपने कहा कि अंदर की चीजें ठीक जब होंगी, बाहर की भी उतनी ठीक दिखेंगी. तो आई फर्मली बिलीव दैट मेडिटेशन, गुड स्लीप हेल्प्स इन रिकवरी एंड रिस्टोरेशन, नॉट जस्ट ऑफ योर बॉडी, ऑल्सो योर स्किन. So, of course, it helps. I would say, I can't say there's excessive scientific data giving causal evidence कि इतना meditate करोगे या इतना योगा करोगे तो आपकी चेहरा better हो जाएगा. But there is, I think, enough evidence to state that good sleep gives you better restoration to your skin. So yes, I do believe that this helps. ग्रेट. If you are calm and less stressed, you will look and feel better, I feel. करेक्ट. सर आई एम श्योर कि स्लीप का भी मेजर रोल होना चाहिए इसमें सर. स्लीप का तो है, बिकॉज आपके स्लीप से आपका स्किन को एक रीसेट मिलती है और आपके हॉर्मोन्स को रीसेट मिलती है. ओके. तो अगर वो मिलेगी तो आपका वो स्किन एंड पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बेहतर रहेगा. Correct. And sir, since you treat people day in and day out, does this screen time, television, computer screens, everything, all blue screens relate to facial challenges? Of course it does. I don't know if you happen to see the news today or the paper wherein it said that there was a study which was pushed under that screen time and use of social media led to anxiety, depression, and a feeling of low self-esteem in individuals. And leaving that for a week improve things. So clearly, of course, these things do have a role in amping up the stress. So if the stress is high, it will affect somewhere. And the stress in particularly the millennials and Gen Alpha is super, super high, I feel. Not so much the millennials, but Gen Z, Gen Alpha. But everyone's a bit stressed and worried about how they appear. So I think, yes, it is real life and real life nowadays. So one has to balance both. You know, I think you can't ignore either for now, the way things are. So it's fine, but yes, I would say take care of yourself from both perspectives. Rafnashid, यहाँ पे I think आपने बहुत सही कहा. When you look inside, things will be taken care on the outside. तो यहाँ पे हम लोग खाने को मिस नहीं कर सकते. The food part, the hydration part, the lifestyle part. So I think what are the major challenges which probably people in their 20s and 30s face because of their lifestyle, studies, work pressure, relocation, बहुत सारे challenges होते हैं. What is the best way to look at it in terms of their food, their hydration and everything? See, hydration 2 to 2.5 liters of water per day is what is recommended, if not more. So I myself never used to do it. Now I keep a bottle with me and do it regularly as much as I can. So at least that is easy to do. So try and make that effort. Nowadays, it's become so popular. Oh man, one meal a day. I would say it's okay for some time, but you know, it's not something which is sustainable. So have portion controlled meals, but have a balanced nutrition that helps, I feel. And lastly, as always said, that I think we've repeated that point many times, that good sleep helps and good recovery helps. Correct. All these things play an important role. And of course, I don't think I need to spell this out, but habits do have an effect. Smoking does lead to excessive collagen breakdown. Oh. So yes, if you are doing it too much, please try and tone it down. And if you've already toned it down, maybe you could think of further decreasing it or giving it up. Great. Does gut health come into the picture into all this? Because there is a lot of noise around gut health. 100%. Okay, great. Then we talk about facials because, you know, they have referred about the facials. Are facials must after 35? It's not like it's a must after any age, but I think for a younger age group, facials are good from a perspective of skin health, particularly medical facials. But for an older age group, let's say
कोई 50 इयर्स का है और सिर्फ फेशियल ही कराया जा रहा है, कोई और प्रोसीजर नहीं करा रहा, मैं कहूंगा कि स्पेंड योर मनी एंड एफर्ट ऑन समथिंग विच विल हेल्प यू इंड्यूस कोलेजन rather than just a facial all the time, because it will give you a long term benefit. But yeah, before an event, if someone's doing a facial, that's fine, provided they don't have active infection or active disease on their face. सर आइडियली कब करवाना चाहिए? अगर मान लीजिए इवेंट आपके पास एक हफ्ते के बाद है तो कब कराना? फेशियल पे निर्भर है। अगर कोई माइल्ड फेशियल हैं जो आप 1-2 दिन पहले भी करा सकते हैं, शायद वो सुबह भी करा सकते हैं, ओके बट आई ऑलवेज से कि 2 दिन का बफर रखना चाहिए, ओके क्योंकि आजकल वेडिंग सीजन है, तो मैं ये नहीं चाहता कि सब जाके उसी दिन सुबह कराएं। 2 दिन 3 दिन, इवन फॉर अ लाइट फेशियल, इफ समथिंग अ लिटिल मोर अग्रेसिव, मे बी 5 days, 4-5 days minimally before the event. Okay. So what is typical one treatment which I think any women into 30s should look at minimum? It's very difficult to say one per se, but I think if I have to say, not treatment in a clinic, but generally at home, at least moisturize and sunscreen. Okay. But treatment in the clinic will completely depend upon the kind of skin that you have. Okay. And the problem is, it's difficult to say one treatment alone. But yeah, it varies from person to person. Okay. What could be a best one, I would say, an ideal cycle for making sure you are taking care of your skin? एक अच्छा रूटीन क्या होना चाहिए फॉर एनीबडी टू 20s and 30s? सुबह मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, या एक सनस्क्रीन विद अ मॉइस्चराइजर, जैसा मैंने पहले भी कहा था। एंड आपने 20s to 30s बोला, तो रात को आप अपना स्किन मॉइस्चराइज करें और मे बी सिंपल चीज शुरू करें, जैसे कि नियासिनामाइड, मैं उसको एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलता हूँ, तो वो इजी है टू स्टार्ट ऑफ विद एज अ सिंपल स्किन केयर रूटीन टू स्टार्ट ऑफ। ओके, सो वी मिस्ड ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आप ये जो डिफिकल्ट टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो मैं हमारे व्यूअर्स के लिए, आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज वेल एजुकेटेड, बट फॉर आवर कॉमन व्यूअर्स वी जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस टर्म्स. So what is retinol used for? Retinol is a form of vitamin A, and it is basically used to improve collagen production. Okay. Firm up your skin in a way. Great. And this vitamin C is? Vitamin C is to improve texture of the skin and as well as tone. It also helps in pigmentation. ये एक antioxidant है एक तरह का. ओके, सर ये नियासिनामाइड, हाँ नियासिनामाइड. नियासिनामाइड आपके स्किन टेक्सचर को बेहतर करेगा, थोड़ा पोर्स में हेल्प करेगा और एक कंपोनेंट देगा. आपको याद होगा फेयर एंड लवली एक आती थी. ओके, उसमें आप बोल सकते हैं, हाँ, हम करेंगे तो ब्रांड प्रमोशन हो जाएगा, आप बोल सकते हैं. तब से आती है वो. ये बात अलग है कि उसमें तो तब से नियासिनामाइड था, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया. अब नियासिनामाइड की सब बात करते हैं. Okay, sir, what is this hyaluronic acid? HA? Hyaluronic acid is something which helps in hydration. Okay. It's what we call humectant. It helps in hydration basically. Okay, great. Sir, aging gracefully इसकी कोई बात नहीं कर रहा है. Why, sir? अभी की हमने. Exactly, sir. मैं यही चाहता हूँ कि आप कुछ बात करें सर इसके ऊपर. एजिंग ग्रेसफुली का क्या मतलब है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, ज्यादा टेम्परिंग ना करें और एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रेजीम फॉलो करें. एंड अगर प्रोसीजर्स कराएं, कायदे से कराएं और कायदे के पर्सन से कराएं, ताकि एक सटल तरीके से वो हो एंड यू डोंट लुक ऑड, डोंट ओवरडू थिंग्स. सी, एनीथिंग ओवरडन इज बैड. You take too much sugar, that's a problem. You take, of course, if you do too many procedures, that's a problem. So okay. In moderation, everything is great. So, जैसे हमने फेशियल्स को कॉमन बना दिया है, बिकॉज मान लीजिए सर हम लोग हेयर कट कराते हैं, हम लोग फेशियल्स कराते हैं, हम लोग हेयर चंपी की बात कर चुके हैं, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है. ऐसे कुछ फेशियल ट्रीटमेंट्स या कुछ प्रोसेसेस या जो आपने बताया प्रोसीजर्स जिसे हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, ऐसी 2 या 3 नेचुरल, सेफ, न्यूट्रल प्रोसेसेस के बारे में बताइए, बिकॉज दैट इज टू बी एनग्रेव्ड इनटू अ रूटीन. हर 2 महीने पे हम लोग करा सकते हैं या हर 4 महीने पे ये करानी चाहिए, ये अच्छी है हमारे लिए. 1-2 प्रोसीजर सारे एज ग्रुप्स के लिए नहीं हो सकती, बट सम इजी थिंग्स टू डू फ्रॉम एन इंडियन स्किन पर्सपेक्टिव जी वुड बी सम. एक तो आपने बोला ही मेडिफेशियल, दैट्स अ स्किन हेल्थ प्रोसीजर. ओके. एक जिसको हम लेजर टोनिंग बोलते हैं. लेजर टोनिंग हमारे स्किन को थोड़ी फर्मनेस एंड ब्राइटनिंग कंपोनेंट देता है. सेफ है, इजी टू डू है. And other things, I don't want to generalize them, but yeah, microneedling is a simple procedure which is easy to do. But please mind you, do it at a doctor's, don't do it at home. Because sterility is an issue, it can lead to problems, microneedling also, in the long term. So it's better to go to the right place, get it done, and do it in a clean environment. These are simple procedures. If someone is let me reframe it. This is not that everyone should do this procedure. For someone starting their journey, these are easy, icebreakers
कि ये मैंने आज अपने स्किन के लिए कुछ किया, आई ट्रीटेड माई सेल्फ, एंड ये थोड़ा सा कोलेजन भी इंड्यूस करेगा, मुझे ब्राइटनिंग भी देगा. इट्स अ गुड स्टार्ट. Okay. So I think one thing which you should never put on your face. I can name many, but toothpaste is one which is commonly done and should not be done. And if someone has dry skin, please don't rub lemon all over your face. It's acidic, it strips off your skin barrier completely. Oh, okay. और कई बार मैंने देखा है कि कई लोगों का जिनका ऑयली स्किन भी होता है वो हर रोज कहते हैं कि मैं ऑयल लगाती हूँ चेहरे पर. वो सही नहीं है, हर रोज ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है. तो अब खासकर अगर आपका ऑयली स्किन है, योर स्किन इज टेलिंग यू दैट आई एम प्रोड्यूसिंग ऑयल, सो देयर इज नो पॉइंट इन अप्लाइंग टन्स ऑफ मोर ऑयल ऑन इट. विल ओनली गिव यू एक्ने. सो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स बट दीज आर सर्टेन. एक और जो बहुत कॉमनली इंडिया में फिटकरी लगाई जाती है, Okay. वो भी मैं कहूंगा कि अवॉइडेबल है. उससे भी इरिटेशन काफी हो सकती है. Great. I think Dr. Rajat, you have taken enough of your time, so I think we had a great session. But without these few rapid fire questions, we can't allow you to go, sir. So I think a few quick questions to you, sir. Retinol, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? 35 to 40 would be good Okay. time. अगर उसके पहले बहुत लाइंस आ रही है, मे बी उसके पहले. Okay. And vitamin C, morning and night, which one is the best? Can be used at both times, but morning with a sunscreen. Okay. Sir, ये niacinamide acne prone skin के लिए सही है? हाँ. Okay. And this hyaluronic acid, will it suit to a dry skin? If you're using a hyaluronic acid serum alone, no. It can even dry your skin further. Okay. मैंने एक बात बोली थी, ये ह्यूमेक्टेंट है, ये पानी अंदर से लेके बाहर फेंकता है. तो अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे तो ये कई बार वर्स भी कर सकता है चीजें. सो अलोन नो. Okay, correct. Because ये बहुत सारे सब्जेक्ट के सवाल आए हैं. सर ये मेंशन दैट AHA BHA कितने बार यूज करना चाहिए? AHA BHA दिन में एक बार, या पहले अगर स्ट्रॉन्ग कंकॉक्शन है तो स्टार्ट विद ऑल्टरनेट नाइट्स. ग्रेट. सर मॉइस्चराइजर्स, दे मेंशन कि मॉइस्चराइजर ऑयल किस प्रकार की यूज करनी चाहिए? मॉइस्चराइजिंग ऑयल, कोई भी ऑयल मॉइस्चराइजिंग होगी. ऑयल का मतलब ये है कि वो मॉइस्चराइज करेगी. करेक्ट. आई थिंक सवाल अगर किसी को ऑयल यूज करना है, सबसे सेफ एज पर डेटा इज कोकोनट ऑयल. ओके, फाइन. चेहरे के लिए इतना नहीं, खासकर इंडियन बॉडी के लिए सही है. Perfect, perfect. Because I think, sir, there was a controversy जहाँ पे अभी हमने, I think we were doing research and there was for a famous brand of India, there was something which was going on. So we avoided that in this conversation. Sir, hair fall का number one reason क्या है, sir? Hair fall in 20s. I think number one reason of hair thinning is genetic, ज्यादातर, और लाइफस्टाइल. बट हेयर फॉल पर से बहुत कारण से होती है, जिसको हम किलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं अपनी भाषा में. बट बैड न्यूट्रिशन, maybe fever or any stress, 3 to 4 months back. This causes an immense fall. Low hemoglobin in women causes an immense fall. Abnormal cycles or excessive cycles can cause a hair fall. These are common reasons in India or anywhere. सर ये डैंड्रफ बार बार आने का कारण क्या होता है? ऑयली स्कैल्प, और लोग उसी पे ऑयल लगाते हैं कि मेरा डैंड्रफ ऑयल से चला जाता है. उस पे ऑयल मत लगाइए. डैंड्रफ में एक फंगस इम्प्लीकेटेड होता है जो ऑयल से प्यार करता है. तो हम उस टाइम तो हट जाएगी वो, बार बार आती रहेगी. तो बेस्ट So use an वो फॉलो. and keep your scalp clean. ओके. ऑनियन ऑयल क्या सच में काम करता है? किस मात्रा में काम करता है ये किसी को नहीं पता अभी. बट यस, उसमें विटामिन बी के कोई रूप होते हैं तो कुछ कुछ काम करता होगा. बट कितना काम करता है और कितनी मात्रा में करता है, हाउ मच अनियन ऑयल शुड आई अप्लाई टू एक्चुअली गिव माई हेयर स्ट्रेंथ, वी डोंट नो. ओके. सर बायोटीन इज यूजफुल या ओवरहाइप्ड? It is, I would say it is useful to a certain extent. In practice, we all use it as a vitamin to improve hair. So I would say yes, it is helpful. Okay. Keratin treatments are safe? Keratin smoothing is relatively safer than a straightening or rebonding. So maybe yes, but yes, it can also lead to a hair fall few months later. Okay. But relatively safe. Laser hair removal, sir? Long term safe? Safe. So collagen supplements regular लेने चाहिए? 3-4 महीने लीजिए, उसके बाद ब्रेक दीजिए किसी भी विटामिन या सप्लीमेंट. So 3-month cycle? 3-month cycle, give a break or decrease it to once in 3-4 days, or give a break for a month, then come back on it. Okay. Now a trick question, sir. Sir, diet या स्किन केयर किसका ज्यादा इम्पैक्ट है, सर? The diet और the skin care? दोनों की जुगलबंदी चलनी चाहिए. सर ये इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत सारे हैक्स आजकल हम करते हैं, हम मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं. हीरो है सर, बहुत ब्रांड प्रमोशन हो रहा है सर. तो एक आइडियल अप्रोच क्या होना है इसका? आइडियल अप्रोच ये है कि हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनकी बात सुने. इन्फ्लुएंसर डर्मेटोलॉजी नहीं की है ना. Correct. Sir, one tip which you like to give to all age groups, 20s, 30s, 40s and 50s. One tip from Dr. Rajat.
Focus on your diet and lifestyle, and with skincare, keep it simple and keep it consistent. You will get results. पर सर कोई स्पेसिफिक नहीं 20s 30s 40s के लिए सर? आई थिंक वी डिस्कस कि किस एज पे क्या यूज करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि ये सबके लिए एक ओवरऑल एडवाइस यही रखो। सर आपका रूटीन कैसा है, स्किन केयर रूटीन? हालांकि ये सवाल मोदी जी को पूछा गया था, पर हमने आज तय किया था कि डॉक्टर रजत को जरूर पूछेंगे। मैं सिंपल जो मैंने आपको बताया कि आफ्टर 40 करना चाहिए, कुछ कुछ कर लेता हूँ, जब कोशिश यही रहती है कि कंसिस्टेंट रहूं, बट आई यूज retinol on alternate night, at least twice a week maybe, and I use an AHA, BHA, PHA concoction on certain other days. In the morning, I use my sunscreen, and if I remember, maybe a vitamin C. वंडरफुल। सर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे लिए सेफ है क्या इंडियन स्किन के लिए? हाँ, बिकॉज दे आर टेस्टेड समवेयर एल्स एंड वी हैव दैट फ्लेयर कि नहीं मुझे तो इंपोर्टेड यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कोई महंगा है तो बेहतर है, बट येस, सम प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड एंड सम इंडियन प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, सो आई थिंक यू कांट जनरलाइज इट, बट आई कांट से यू कांट यूज एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट ऑन योर फेस, बिकॉज आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल आर यूजिंग देम। Okay, and sir, one last question, which I think probably a lot of the women will not like if I'm asking, including at my place. Are lipsticks safe regularly? And what if they swallow it? If they swallow it, nothing major will happen unless, of course, you're ingesting large amounts, obviously. As for safe, I think mostly they are safe, but there are some hypoallergenic lipsticks for people who react to certain things in the lipstick. It's a cosmetic, right? So in cosmetics, you may react to certain things in the cosmetic. So in case you do react, then ideal way is to identify what is causing it, which is done with a patch test, which is a slightly tedious process, but otherwise use a hypoallergenic lipstick. There are few available worldwide. One can identify them and get those. Great. So basically, sir, आप ये कह रहे हैं कि यूज कर सकते हैं? Use कर सकते। Great. Dr. Rajat, I think we have taken enough of your time. We are so delighted with this conversation. आपने बहुत candidly सारे सवाल के जवाब दिए and tons of information coming today. I think इसे रिपीट पे लूप पे देखा जाएगा and all our viewers, it's going to be a fun day because बहुत सारी जानकारी मिली है. So thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. And I will not allow you to go with the last question. Sir, what is your dream? Because आपकी जो फील्ड, आपका जो क्षेत्र है डर्मेटोलॉजी का, आप अपना एकेडमी चलाते हैं, आपका एक स्टार्टअप है, आप इतनी सेवा कर रहे हैं. What is your dream? My dream. I think I'm living my dream to some extent, but of course, everyone wants to, look forward to expanding their horizons, and I'm trying to do that. I will completely divulge this once it's complete. Okay, great. So I think I will not miss this opportunity because we were supposed to say something with your permission. Sir, आप नया कुछ कर रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? I kept an open-ended question, sir, with your permission. We are working on certain things in the Facecraft project, as well as planning to write a book for younger dermatologists and plastic surgeons. Great. Sir, आपके लिए compliment है. Doc is not aging. I saw him last 3-4 years ago. Charming somebody. So it's a compliment coming for you. Sir, on a personal note, so thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, Dr. Rajat. We had a fun session and you've been very candid. We loved the session. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, sir. Yeah.